सर वो एक क्वेश्चन था ना सर, सेल्स वाला, जिसमें 6000 आंसर आ रहा था सर, आपने वो देखा? हाँ, वो बाई मिस्टेक 60 टाइप हो गया। मैं सबका एक्सेप्ट कर लूंगा उसको उसको 1 मार्क ऐड कर दूंगा सारे लोग को। ठीक है, यस सर। कॉमन हो जाएगा सबके लिए वो, क्योंकि वो टाइपिंग में 1 0 बढ़ गया उसमें। एक्चुअली 6000 टाइप करना था, 60,000 टाइप हो गया उसमें। ठीक है, यस सर। ओके। ईशांश, Yes, sir. यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। जब तक बाकी बच्चे आते हैं आप Okay. प्रेजेंटेशन चालू करो अपना, फिर अपन मार्क्स बताएंगे बाद में एक साथ, तब तक खत्म हो जाएगा सारे। Okay, sir. आपके पास पीपीटी है, कैसी बताओगे? Sir, PDF है sir. हाँ बताओ, उसको करो। So my topic is modes of dissolution of firm. Means what are the modes of dissolving firm? It means हम्म, when when the firm dissolves, what are the ways in which the firm can be dissolved? What are हम्म, the modes? So the first mode is mutual agreement. हम्म, If partners say we don't want to continue business with each other anymore, as our business is not earning profit, so stop the business. So by mutual agreement with the partners, the firm can be dissolved. Second point, compulsory dissolution. When हम्म, it is compulsory. Compulsory means no other choice, just one way. In a situation the business you are doing is unlawful, as some partners are doing business of drugs and it is not going, or it is also going well, but after some time you came to know that business that you are doing is illegal or unlawful, so you हम्म, have to stop that business. It is compulsory dissolution, otherwise you have to go jail. So this is a compulsory dissolution. In other situation, suppose two partners are there, A and B. From both of them any one of will become insolvent, then only one person can't run partnership, so the firm will dissolve. So it is also a compulsory dissolution. So as in a point A, when all partners or all the partners except one become insolvent, then it is compulsory dissolution. Third point is by notice. Let's suppose partnership as at will. Partnership at will means an agreement under which any partner, by giving notice in writing to all the partners of his intention to dissolve the firm, then it is also dissolved, fine, will dissolve. Fourth point, on happening of an event. A. On expiry of the term means suppose a partnership was started for 20 years. So after 20 years, the firm will dissolve. On completion of venture, venture means goal or any work. After completion of that goal or work, the firm will dissolve. Death of a partner. Suppose two partners are working in a business. One of them will die. So firm will dissolve. On exhaustion of partner as insolvent means the court said that one partner is insolvent, then the firm will dissolve. Dissolution by court. The court can also dissolve the anyone's firm when a partner becomes unsound mind. A partner is permanently incapacitated means it is said that partner is permanently can't do business. A partner. Suppose for example, there are two countries in our, one is our country and another is Pakistan. So two persons A and B from both the countries respectively are doing business. But our country say no, you can't do business with Pakistanis. So in this situation, the firm will dissolve. Now, suppose any other partner found guilty in misconduct, the firm will dissolve. Or if any partner is breached partnership against persistently, then also the firm will dissolve. If court finds dissolution of firm is justified, then also the firm can dissolve. So there are these are points the court can dissolve the firm. So that's all in the modes of dissolution. Thank you and Sairam. ओके। ईशांश, ओपन अ वीडियो। Okay. So, in case of dissolution of the firm,
assets are transferred, assets and liabilities are transferred to realization account. Okay. Are you listening me? Am I audible? Yes, sir. Okay. So suppose there are investments of rupees 90,000 Yes, sir. and market price of investment is 60,000. Yes, sir. No, these investments Sir, are taken by the market value of 90 investment. 60,000. Yes, sir. No, it is taken by one of the partner, Mr. X, Yes, sir. for rupees 40,000. Yes, sir. What will be the entry? Mm. Sir, to giving the assets to Mr. X, realization account debit to Mr. X. Sorry. Yes, sir. Now, next question. Yes, sir. Suppose there are three partners, X, Y, and Z, in a Yes, firm. sir. This Yes, sir. firm is dissolved. Yes, sir. Okay. Z takes the responsibility of realization expenses. Yes, Sorry, sir. Z takes the responsibility of realization. He takes the responsibility of realization, Yes, sir. and he also takes the responsibility of realization expenses. Yes, sir. The expenses of realization were rupees 50,000, Yes, sir. which are paid by firm. Yes, sir. What will be the entry? Realization account debit to dissolution expenses. Sorry, 50,000. sorry. Entry will be Z's capital account debit to cash account. Okay. Yes, sir. Now, next question. In what order the assets proceeds from sale of assets will be utilized at the time of dissolution? Assets को बेच के जो पैसा मिलेगा उसको किस ऑर्डर में यूटिलाइज करेंगे? Yes, sir. Sir, first write off the liabilities. Sorry, sir. जो भी सर पैसा Why do we calculate sacrificing ratio? to at the admission of partner, we calculate sacrificing ratio because they sacrifice their ratio to give their sacrificing ratio to a new partner. So for a new profit sharing ratio to fund new sharing profit sharing ratio after the admission, we to share the new profits and losses. That's why we calculate sacrificing ratio. Your answer is half correct only. Okay, but this is not the Yes, sir. basic reason of sacrificing ratio, but it is half correct. Next question. Suppose a new partner is admitted, sorry, a partner retires from the firm. There are three Yes, sir. partners, X, Y, Z. Yes, Three sir. partners are there. Okay, X, Y, Z in equal Yes, ratio. sir. Yes, sir. Goodwill is appearing in the books at rupees 30,000. Yes, sir. Z retired, Yes, sir. and on the Z's retirement, Yes, goodwill is sir. valued at rupees 90,000. Yes, sir. What will be the entry or entries for treatment of goodwill? Yes, sir. So first entry to uh, write off these 30,000 entries. So X
capital account debit, Y's capital account debit, Z's capital account debit to goodwill, Okay. and then after, sir, uh, uh, mm, then after, sir, X capital account debit, Y's capital account debit to Z's capital account. Amount सर X का 30,000, Y का कैपिटल का 30,000 एंड 2 Z का 60,000. आपका अमाउंट गलत हो गया, पर ठीक है, आपने एंटी बता दी, पहली वाली एंटी बता दी, इसलिए मान लेता हूँ पूरा करेक्ट है। ठीक है, Yes, तो 1/3 निकालना पड़ेगा ना 90,000 का आपको। 1/3 निकालेंगे 90,000. 30,000 आएगा। 30,000 को डेबिट करेंगे दोनों में, 15,000, 15,000, 30,000। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. X debit 15,000, Y debit 15,000, to Z 30,000. Okay. Yes, Now, in case of death of the partner, yes, sir. if there is a loss up to the date of death, Yes, जिस sir. ईयर में उसकी डेथ हुई उसका लॉस आया, Yes, तो sir. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी? Adjustment entry. Sorry, sir. अरे भैया सिंपल एंट्री थी, क्या कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस आया तो रिवर्स कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। Yes, sir. इसमें कंफ्यूज हो गया सर सस्पेंस वर्ड में सर. ओके, लास्ट क्वेश्चन, एनी Yes, टू sir. conditions except change in profit sharing ratio, admission and retirement, in which firm is or partnership is reconstituted. Yes, sir. Any two conditions of reconstitution of partnership except change in profit sharing ratio, admission and retirement. Yes, sir. किस किस कंडीशन में फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है? एक तो बहुत ही आसान है जो सबको पता है, एक थोड़ा डिफिकल्ट है, याद नहीं है तो डिफिकल्ट है, याद है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ बोलो संस, कुछ भी दिमाग में आ रहा तो बताओ, जल्दी करो। सर नहीं आ रहा सर. ठीक है, थैंक यू। सो दैट्स ऑल, दिस प्रेजेंटेशन एंड वाइवा इज ओवर। अच्छा, इसका एक अच्छा पार्ट क्या बता रहा मैं आपको, ये क्वेश्चन जो मैंने पूछे आपसे वाइवा में, दिस क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द फाइनल वाइवा। तो प्रैक्टिकल होता है ना आपका, उस समय वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो दिस विल गिव यू एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द वाइवा। Yes, sir. नॉर्मली हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, बस थ्योरी में भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, वाइवा में। Yes, So sir. that you can prepare for Viva. So now this is the time for showing your mass. ठीक है। अच्छा, गूगल फॉर्म दिखेगा अगर प्रेजेंट करके, गूगल फॉर्म खोल दिखेगा कि आपको? अगर मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके गूगल फॉर्म खोल दिखेगा कि आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कर देता हूँ, आप देख लेना अपने अपने नंबर। प्रेजेंट नाउ, एंटायर स्क्रीन करो ना प्रेजेंट। यस सर। Yes, sir. यस सर। एंटायर स्क्रीन, शेयर शेयर, ओके। दिख रहा है आपको साईराम? गूगल फॉर्म इज विजिबल अनुराग? यस सर। ये देखिए यहाँ पर इधर सेकंड कॉलम में नो सर। किसको नहीं दिख रहा है?
मैं बोलते जा रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो नोट कर लेना आप। सबसे पहले दीपांशी 3/20, मैं भी नोट कर लूँ अपने पेपर पे, बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। अभी मैं इसमें 1 मार्क ऐड करूंगा, अभी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 मार्क सबको ऐड करूंगा, जो गलत क्वेश्चन हो गया उसके लिए। क्लियर है सबको? अभी जो आपका इस पे स्कोर है वो लिख रहा हूँ, बाद में 1 ऐड कर दूंगा। प्रियांशु 15, कार्तिक 5, मानवी 17, उसके बाद है अंजलि मिश्रा 7, श्रेष्ठा 9, उसके बाद है आदित्य कावरा 3, उसके बाद है विश्वास शर्मा 8, हर्षी सिंह गुर्जर 14, पलक कावरा 4, उसके बाद है संध्या राजपूत 9, उसके बाद है आपका सिद्धार्थ 15, केशव 16, ईशांश 14, उसके बाद है विकास 8, अनुराग 12, नीरज 5, उमंग 3, शरद 5, नमन 9, नंदिनी 4, अंशिता 6, पार्थ 14, and Niyati 10. Okay. So this is the score. If it is visible, then okay. अगर किसी को नहीं समझ में आया, नहीं सुना हो तो पूछ लीजिए मुझसे। सबको मालूम चल गया अपना अपना? साईराम? Sir. Okay. So I am stopping sharing. Coming back to the meet. Okay. So this is your score of सरप्राइजिंग है। कुछ बच्चों का क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा, लेकिन गूगल स्कोर अच्छा नहीं है। कुछ बच्चों को क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, लेकिन गूगल स्कोर अच्छा है। व्हाट इज द मिरेकल आई डोंट नो। क्या चमत्कार हो मुझे नहीं पता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बट दिस इज द स्कोर ऑफ गूगल फॉर्म। सो दिस प्रोसेस इज ओवर। इसमें से जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें 6-7 नंबर का था, 7 में से 6, 5, 7 में जितने भी मार्क्स मिले, 5 से कम किसी को नहीं मिले हैं और 7 से ज्यादा किसी को नहीं मिले हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में। बाकी क्वेश्चंस में आपको बताता गया था। आपको 7 क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, उसमें पहला क्वेश्चन 1 मार्क का था, बाकी सब क्वेश्चन, यानी मुझे 13 मार्क्स चाहिए कुल मिला के। तो 13 मार्क्स में से आपके 2 क्वेश्चन सही थे तो 4 नंबर हो गए आपके, 3 थे तो 6 हो गए पॉइंट आपके। ऐसे मैंने बताए थे। आप तुरंत बताता गया था किसके कितने क्वेश्चन सही हैं उसमें, तो वो उसमें ऐड कर दूंगा। आपका प्रेजेंटेशन वाले मार्क्स ऐड करके, गूगल फॉर्म मार्क्स ऐड करके आपका टोटल स्कोर आ जाएगा इसमें, ठीक है। सही राम, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इसका प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अकाउंटेंसी वाला। अब अगला जो आपका गूगल असेसमेंट है वो बीएस का है, वो ट्यूसडे को है ना, क्योंकि मंडे को मेरी क्लास नहीं है आपके यहाँ। सो दैट इज ऑन ट्यूसडे। तो हम लोग उसको ट्यूसडे में क्लास के टाइम पे करेंगे।
और फिर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो हम ऐसे ही रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, क्योंकि मेन क्लास में तो हम अपना सिलेबस पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा, नवंबर खत्म होने वाला है लगभग। तो वैसे नॉर्मल क्लास जब होती थी तो मैं नॉर्मली नवंबर में अपना सिलेबस पूरा खत्म कर देता था, दिसंबर तक तो कभी गया नहीं सिलेबस। लेकिन इस बार ऑनलाइन में थोड़ा टाइम कम मिलता तो उतना डिले हो गया, तो हम थोड़ा जल्दी अब कोशिश करेंगे। हमारा अकाउंट्स में ये शेयर वाला चैप्टर हो जाएगा, तो डिबेंचर्स में तो बहुत कम पार्ट है उसका, डिबेंचर का ऑलमोस्ट 70% इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा शेयर के साथ में, और डिबेंचर वाला बचेगा, तो एक वीक में डिबेंचर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम नवंबर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक शेयर्स खत्म कर लेते हैं, डिबेंचर्स खत्म कर लेते हैं, तो जनवरी तक हमारा पूरा सिलेबस सेकंड पार्ट का खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में कम टाइम लगता है, उसमें चैप्टर छोटे हैं। ठीक है, और बीएस तो डेफिनेटली हमारा दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर महीने में खत्म कर लेंगे उसको। ठीक है, so that will be our strategy। आपका अभी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आ गई है, आज कल होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ गया कि 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, 9 to 12 की गाइडेंस क्लास चलेंगी जैसे चल रही है, बाकी रेगुलर स्कूल्स विल नॉट बी ओपन टिल 31 दिसंबर। आज ही गाइडलाइन आ गई उसकी, होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की। तो अब 31 दिसंबर तक तो रेगुलर स्कूल ओपन नहीं होंगे, ये तो पक्का हो गया। साईराम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। इसका मतलब क्या बचा, आपको मैं थोड़ा एक दो बार और भी समझाया था, और जो आपका मैंने वाइवा लिया, जो क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कुछ बच्चे डर गए हों, स्पॉन्टेनियसली नहीं दे पाए आंसर, इट इज पॉसिबल, है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि नर्वसनेस होती है डेफिनेटली। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे लगा कि दे आर टोटली ब्लैंक, तो उनको सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए 10th और 12th का तो एग्जाम होगा, पक्की बात मान के चलो। ये गलत में भी मत रखना दिमाग में कि 10th और 12th का एग्जाम नहीं होगा, 10th और 12th का एग्जाम तो होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट पूरा ट्राई करेगी कि ऑफलाइन ही कराएगी उसको, ऑनलाइन तो नहीं होगा, जैसे ट्रेडिशनल मोड में होता है वैसे ही होगा वो। ठीक है, तो वी शुड बी सीरियस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जब क्लास में आते थे तो आपको पीछे पड़ जाते थे, बार बार पूछते थे, बताते थे आपसे, तो आपको मालूम चलता था कि हम लोग क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप स्कूल में नहीं आ रहे हैं, हम लोग के सामने नहीं है, तो आपकी और पेरेंट्स की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि पेरेंट्स भी देखें आपको कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप लोग उनको भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं क्या इतने मालूम कर सकते हैं कि वो आप कुछ कर रहे हैं। तो वो आपको ही ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, मेहनत करें। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। अगर बाई चांस जैसे एग्जाम होता है मार्च फरवरी के एंड में, मार्च के फर्स्ट वीक में, वैसा अगर डेट्स आ जाती है सपोज करो, तो फिर क्या होगा सोच के चलो। सैराम, यस सर। सर तो आपके पास अभी इस बार एक अच्छी बात जो है वो है कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए, बहुत टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। तो आगे का सिलेबस छोड़ सकते हैं आप, अभी जो चलता जाएगा होता जाएगा, दैट इज नॉट इशू। इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि सिलेबस देर से कंप्लीट हो गया जल्दी का। आपके पास टाइम इस बात के लिए कि जो सिलेबस कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना कर सकते हैं, अपने आप रिवीजन कर सकते हैं उसका, है ना। रिवीजन के लिए बहुत टाइम आपके पास है, तो आप अपने लेवल पे अपना टाइम फिक्स कर लो कि मेरी 3 घंटे की तो ऑनलाइन क्लास होती है, 1-2 घंटे मुझे जो काम करना है वो करना होता है क्लास का जो चल रहा है वो, लेकिन मेरे पास जो 7-8 घंटे एक्स्ट्रा है, 6 घंटे एक्स्ट्रा है, उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। दैट यू कैन स्टार्ट। तो बीएस में आप याद करो, लिख के देखो, और जो मेन पेपर आएगा आपका बीएस का वो डायरेक्ट तो आएगा ही नहीं। पिछले 3 साल के पेपर देखना, बहुत पुराने मत देखना, पिछले 3 साल के पेपर देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम बेस्ड पे होता है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव आता है ना, राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो अनसीन पैसेज का जो आता है, उस तरह के क्वेश्चन अब बीएस में आते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसमें कंटेंट क्या है। आंसर बड़ा नहीं लिखना होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए उसके लिए, दैट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो उसके लिए तरीका क्या है कि पहले तो आप कंटेंट याद करो। एनसीईआरटी बुक हमने सजेस्ट किया, और कोई बुक उसमें हम यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक का पूरा कंटेंट अगर आपको समझ में आ गया, याद कर लिया, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, क्या लिखना है उसमें। दैट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो अभी आप चाहें तो सैंपल पेपर्स भी ले सकते हैं, मार्केट में सैंपल पेपर्स भी आ गए होंगे, क्योंकि नवंबर आ रहा है लगभग, तो शायद बहुत सारी पब्लिशर्स किसी का भी ले सकते हैं आप। इट्स नॉट कोई स्पेसिफिक पब्लिशर नहीं है सर, सब पब्लिशर एक ही काम करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं। तो आप किसी भी एप्लीकेशन का अपना ले सकते हैं और अपना जो है तैयारी चालू कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका आपकी खुद की जिम्मेदारी इस ईयर में बहुत ज्यादा है। ना तो पेरेंट्स उतना हेल्प कर पाएंगे आपको, ना टीचर्स उतनी हेल्प कर पाएंगे। टीचर्स आपको हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉब्लम्स अपनी ढूंढेंगे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, एक्सप्लेन करो, तो टीचर्स उतनी हेल्प कर पाएंगे आपकी। अगर आप खुद ही अब से भागेंगे जिम्मेदारी से कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे तो बेवकूफ बनाना है, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, मान लीजिए, है ना। सो दैट इज योर ड्यूटी टू बी सीरियस, एक्सेप्ट ऑनेस्टली कि मुझे ये नहीं आ रहा है। उसको पूछो टीचर से कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे समझा दीजिए, या अपने फ्रेंड से पूछो, किसी से पूछो, बट वी शुड अंडरस्टैंड। जिससे भी हमको पूछना समझना, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किससे हम पूछ रहे हैं, बट हमको समझ में आना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। आपका फ्रेंड समझा देता है, अच्छी बात है। आपको ट्यूटर समझाता तो अच्छी बात है। आप टीचर से समझते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो जो भी आपको समझा सकता है, जैसे भी आप समझ सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके बड़े भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकती है घर पे, कोरोना टाइम में सब लोग घर पे ही हैं, उनसे जो भी समझा दे आपको, दैट इज गुड थिंग, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको? Yes, sir. तो Yes, अभी sir. भी पूरा वन वे ट्रैफिक चल रहा है, ऑनलाइन क्लास है नहीं दिखाया तो फिर पूरा वन वे ट्रैफिक है। हम लोग बस इंजन दौड़ाते जा रहे हैं ट्रेन का, और कोई पैसेंजर ना उतर रहा है, ना कोई पैसेंजर चढ़ रहा है, ट्रेन चलती जा रही है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ दिस ईयर। सो इट्स वेरी क्रूशियल टाइम, डिफिकल्ट टाइम। अब आप इसको एज ए ट्रेजेडी ले सकते हो या एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, दोनों ही आपके ऊपर है। यू कैन कन्वर्ट इट एज ए ट्रेजेडी और यू कैन कन्वर्ट इट एज ए अपॉर्चुनिटी, बोथ आर अंडर योर कंट्रोल। अगर आप सीरियसली, जो मैं बात कर रहा हूँ, बार बार शुरू से आपको एक बात बोला हूँ कि बहुत टाइम आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए है। हर साल बच्चों को जो प्रॉब्लम होती थी, वो इस साल बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था। 7 घंटे स्कूल में आते थे, 1 घंटा आने जाने का, 8 घंटे तो उनको इसी में चले जाते थे। इस बार उसमें से आपको 3 घंटे मैक्सिमम देने पड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, वो भी घर बैठ के। तो आपका स्कूल आने के, तैयार होने का टाइम, आने जाने का टाइम, सब कुछ बच रहा है आपका, है ना। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडीज। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। मन तो भागता है, जब फ्री होते हैं कोई कंट्रोल नहीं है, तो अच्छा होती है कि घूम के आए, ये करें वो करें, फालतू टीवी देखना बैठ के करना। सो डाइवर्ट योर माइंड टू स्टडीज। थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा अपने आप को, माइंड को ट्रेन करिए कुछ दिन के लिए और स्टडीज पे लगाइए, ठीक है। नॉलेज नेवर गो टू द वेस्ट। ऐसे सोचना छोड़ दीजिए कि एग्जाम नहीं होगा तो आपका जो पढ़ाएंगे, आप तैयारी करेंगे, वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको तो हेल्प ही करेगा, काम में ही आएगी नॉलेज आपको कभी ना कभी। तो एग्जाम तो होगा ही होगा, पक्का मान के चलो। एग्जाम नहीं होगा तो सोच नहीं मत, एग्जाम होगा आपका, और जितना होगा ऑफलाइन में ही होगा वो, है ना। 99% चांस है कि ऑफलाइन में ही होगा, 10th और 12th तो कम से कम होगा। तो हमको तो तैयारी करना है, और जितना जल्दी तैयारी कर लेंगे, अच्छी तैयारी कर लेंगे, उतना हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। डोंट वेस्ट फॉर लास्ट मोमेंट के, जब सीबीएसई का डेट शीट आ जाएगी, पता चल जाएगा कैसे एग्जाम होगा, तभी हम तैयारी करेंगे, तो फिर हम शायद इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर उतना टाइम नहीं बचेगा। सम स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन, अभी जो असेसमेंट हुआ उसके हिसाब से मालूम चल रहा है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। सो दे हैव टू पे अटेंशन, है ना। ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा थोड़ा सा सीरियसनेस रखें पढ़ाई के लिए। और इफ यू वांट टू से समथिंग, अनुराग, क्या करना चाहिए अनुराग, यू सजेस्ट? सर किस चीज के लिए, मतलब सर सेल्फ स्टडी के लिए? हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आप लोग बताओ एक दूसरे को आपस में, क्योंकि आप लोग के अपने एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं ना, यू नो बेटर देन अस। अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होंगे इस टाइम में आपके, तो आप शेयर कर सकते हैं। अनुराग, सर मैं बस इतना ही कहूंगा कि सर जो सोने का टाइम है, अगर हम वो कम कर लें, क्योंकि सर हम हाँ, सोने में मैंने बहुत भी ज्यादा वेस्ट करते हैं मैंने टाइम। भी ऑब्जर्व किया है कि जब छुट्टी होती है, तो यानी छुट्टी का मतलब है कि स्कूल नहीं जाना, तो बच्चे लॉन्ग आवर तक सोते हैं।
सुबह कई बच्चे तो 8-8 9 9 बजे तक उठते हैं सो के। एम आई राइट अनुराग? यस सर। है ना? तो ये जो हैबिट है थोड़ा सा उसको आप ही मान के चलो कि आपको स्कूल जाना है तो 6 बजे उठते हैं स्कूल जाने के लिए, वैसे ही उठो आप लोग, एक माइंड सेट करो अपना कि हमको स्कूल जाना है और स्कूल जाने के लिए जो हमारी तैयारी होती है कि 6 बजे उठ के तैयार होना है, तो वैसा रखेंगे तो आप जल्दी उठ जाएंगे और उस टाइम का यूज कर पाएंगे पढ़ने के लिए। और मेरी एडवाइस हमेशा, वो इंडिविजुअल होता है, हालांकि कोई एक फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है आपको। मेरी जो एडवाइस है, मेरा जो समझ है, एक्सपीरियंस जो भी है, उसके हिसाब से मैंने देखा है कि बच्चे सुबह उठ के अगर थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो याद करना जल्दी होता है, अच्छा होता है। जैसे बीएस याद करना है आपको, तो बीएस का याद करने का काम सुबह करो आप उठ के, जल्दी उठ के पहले 2 घंटे बीएस याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको देखना, आप बहुत जल्दी याद होता है उस समय, है ना? आई मे बी रॉन्ग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अलग बात हो, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ। जब दोपहर का टाइम होता है, जब आप टायर्ड फील करते हैं, जब आप मेंटली इतना फ्रेश नहीं होते, उस समय अकाउंट्स के या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे तो आप कर पाओगे उसको, क्योंकि उसमें एंगेज कर लेता है वो अपने आप को, इंटरेस्ट आता है आपको उसको करने में, तो बोर नहीं करेगा वो। उस समय आप अपना, जब आप बोर हो रहे हैं तो वो सब्जेक्ट करो जो बोर नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल से उनको, जब आप फ्रेश होते हैं तो वो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो जहाँ आपको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। बहुत लेट नाइट पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर किसी को रात में पढ़ने में अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि बहुत ज्यादा रात तक जागने के बजाय सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, रात जल्दी सो जाओ, सुबह उठो। अगर किसी को आदत है कि मुझे रात में ही पढ़ सकता हूँ तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना? एनी अदर सजेशन मानवी? No, sir. नहीं? ओके, सांस? No, sir. ओके, सिद्धार्थ? सैरम सर। सैरम? हाँ सिद्धार्थ, सर 10 बजे 9 बजे उठने का चलना है कि सुबह जल्दी उठता है? मंदिर जाता है कि तो उठ के नहीं जाता? सर सबसे पहले मंदिर ही जाता हूँ सर। कितने बजे जाता है? सर 5:30 बजे। हाँ तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड। सर एक सर सजेशन है सर, जितना कम सर स्क्रीन टाइम करोगे सर उतना बेटर रहेगा। स्क्रीन टाइम मतलब? सर मोबाइल। वो तो आप लोग जानो क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग घर पे बैठ के। अच्छा है, इतना बचोगे उतना दिमाग भी फ्रेश रहेगा आपका, है ना? और आंखों के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, मोबाइल है, टीवी है, इसको बहुत टाइम नहीं देना है। नहीं देखोगे ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जितना अपने आप को लिमिट कर सकते हो उतना करो। अच्छा सजेशन है, नेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करो उस पर, वो तो एंटरटेनमेंट है दुनिया में, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए। उसके लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, है ना? हाँ भाई, पलक का हो चली गई कि पलक? पलक ने छोड़ दिया। और कौन है इस क्लास में? नियति? नियति जैन? कार्तिक? Yes, sir. यस नियति, हाँ क्या कर रही है अभी, पढ़ाई करती है? Yes, sir. क्या एनी सजेशन फॉर अदर्स? No, sir. कोई सजेशन नहीं? कार्तिक? कार्तिक किधर है? नो सर। अच्छा, खुद क्या कर रहे हो? नो सब तो ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हो खुद ही बताओ। कितने बजे तक सोता है? सुबह 9 बजे तक? नो सर। तो सर उठ जाता हूँ उठ जाते हो? कितने बजे उठते हो? 8 बजे? यस सर, उससे पहले उठ जाता हूँ, 7:30 तक उठ जाता हूँ। 7:30 तक उठ जाता है? सोता कितने? 2 बजे? सर नो सर। तो सर 11 बजे करीब। 11 बजे सोता है तो 5 बजे उठाकर 6 बजे मान लीजिए जाए तो पढ़ाई करा कर। तो दिन भर यस पढ़ता सर। नहीं है? सर कभी कभी पढ़ता हूँ। कभी कभी क्यों अभी? कोई वो है क्या, हॉबी है कि कभी कभी पढ़ लिया तो काम हो जाएगा? नहीं है, नो सर। है ना? रेगुलर टाइम टेबल बनाओ, रेगुलर पढ़ो, 5-6 घंटे तो पढ़ो। 12th यस क्लास सर। में इतना 15 घंटे का टाइम, उसमें 6 घंटे तो पढ़ सकते हो। यस सर। आदित्य? यस सर। हाँ, क्या चल रहा है? सोना, खाना पीना, मस्ती बस? यस सर। पढ़ाई वढ़ाई कुछ? करता हूँ ना सर।
करता है अच्छे, कितनी कर रहा है बोलो? 1 घंटे। 1 घंटे? यस सर। इतना बड़ा काम कर रहा है आदित्य, 1 घंटे पढ़ाई कर रहा है। देखो कितना करना चाहिए आदित्य वैसे? सर मिनिमम हाँ? तो 3 घंटे। 3 में क्या होगा मिनिमम? 12th क्लास में होगा, अभी 7th क्लास में हो? कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? 5 सब्जेक्ट, तो वैसे ही 1 घंटा पढ़ोगे तो 5 घंटे तो वैसे ही होते हैं, यस सर। है ना? तो क्या है कि अभी थोड़ा टाइम बढ़ाओ इसके लिए, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? यस सर। घर पर रह के 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो फिर स्कूल आते तो कितना पढ़ते हो? ठीक है, तो इंडिविजुअल बात नहीं है, सबके लिए आदित्य तो ये एग्जाम्पल है, इट इज कॉमन फॉर ऑल। तो ये अगर कोई डांटता टोकता नहीं है तो हमारी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सीरियसनेस खत्म हो जाती है। तो जरूरी है कि थोड़ा आप लोग को डांटता रहा कोई, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि इन लोग को डांटते रहा करें। पेरेंट्स के बड़े बच्चे होते तो उतना नहीं डांटते, क्योंकि समझते अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अल्टीमेटली इतना ही है कि बस सीरियसली पढ़ाई करो, कमांड योर सब्जेक्ट नॉलेज, है ना? एग्जाम तो होगा, कब होगा कैसे होगा वो छोड़ दो, अभी अपने दिमाग से निकाल दो अपना। तो मान के चलो कि जैसे हर साल होता है वैसे इस साल एग्जाम होगा, और जैसे हर साल बच्चे तैयारी करते हैं वैसे हम लोग को भी तैयारी अपनी करनी है ना? बाकी सब चीजें दिमाग में मत लाओ कि होगा नहीं होगा कैसे होगा क्या होगा, वो छोड़ दो। बी रेडी एज यूजुअल, ऑर्डिनरी ईयर मान के चलो जैसे हर साल एग्जाम होता है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो आपके लिए बहुत सारे चीज नहीं होगा, जैसा पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का वैसे ही रहेगा, जो एग्जाम का पैटर्न है वो वैसे ही रहेगा। बोर्ड ने फीस तो जमा कराई ली, एग्जाम फीस ले ली आप लोगों से, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम कराएगा ही कराएगा। तो इंडिकेट कर रहा है, फीस लेके मतलब इंडिकेट कर दिया बोर्ड ने कि वो एग्जाम कराएंगे। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। साई राम, लेट अस हैव शांति पाठ, देन वी कैन क्लोज। ओम शांति शांति शांति। साई राम। और सर हमें सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर जो हमें एमसीक्यू में मार्क्स मिले हैं सर, उसमें हमें 1 मार्क ऐड करना है या नहीं करना सर? हाँ, गूगल पर 1 मार्क ऐड करना है, गूगल में 1 मार्क ऐड करना है सबको। मैं कर दूंगा आपका, जब स्कोर बनाऊंगा तो 1 मार्क ऐड करूंगा सबका, है ना? अकाउंट्स वाला इसमें यस सर। आपका जो स्कोर है उसमें 1 मार्क ऐड होगा सबका, है ना? ठीक है। सर हाँ, सर हाँ, मेरे एक बार मार्क्स रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाई थी। अच्छा मैं देखता हूँ पेपर, एक मिनट। मानवी आपका है इसमें 17, मतलब 18 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे तो ओके सर। 17। ठीक है। सर मेरा भी थैंक यू सर। हर्षी, सर हर्षी का है कहाँ गई हर्षी? हर्षी का है 14, है ना? हर्षी को ओके ऐड सर। होगा तो 15 हो जाएगा तुम्हारा। यस सर।